So, good morning, all. So, in the last session, we have completed all logic gates. So, we have seen there we can classify the logic gates in three categories. First one is basic gates, second one is universal gate, and third one is exclusive gates. So, total seven numbers of gates are there. So, first three are known as basic gates. Those are and or not, and sometimes combined together and they are named as AY gates. Second, we have learned about universal gate. So there are two universal gate, NAND and NOR gate. So today we are going to see why NAND and NOR is called as universal gate. So today's objective of our lab is to see how to make all other gates using NAND and NOR. So that's our objective. So how many people have joined and how many people have just a minute? Forty-five students are there, and till now we have 7 students. So we will wait for 3 to 4 minutes, and then we will start our today's session. Okay. So meanwhile, we will check whether you are remember those truth table or not. So Abhiraj, Abhiraj, Yes, sir. what is the truth table for NAND gate? NAND gate का truth table क्या है? NAND गेट का ट्रूथ टेबल सर 1 मिनट कैलकुलेट करके बता। नहीं कोई नहीं, आप अपने आराम से। Sir. Hello, sir. Tell me, Abhi. Sir, final is 111 and 0. So, okay, so you are saying that input is that I understood. One and yes. So output is 1 when any one input and is 0. Any input is 0. yes, sir. एक भी input 0 होगा तो output yes, 1 होगा. So yes, is correct. So the output of NAND gate is inverted output of your AND gate. So in AND gate the output is 1 when your both input are 1. Yes, sir. So here if you are having any input is 0, then output will be 1. 1. Yes, good, Abhi. Akhilesh. 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि। सर मतलब अभी हम लोग ज्वाइन ही किए तो कुछ पता नहीं चल रहा आपने क्या करा दिया। अभी कुछ कराया ही नहीं, अभी तो बस पीछे जो है गेट्स का ट्रूथ टेबल पूछा था।
Okay, so Ravi, you Yes, answer sir. me. How many number of inputs are possible in NAND gate? कितने input हो सकते हैं NAND gate में? 4. 4. 2 नहीं हो सकते? How many minimum number of inputs are possible and how many maximum number of inputs are possible? दोनों बताने हैं. मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? सर सर मिनिमम सर, मतलब एक बार क्वेश्चन समझा नहीं सर, 1 सेकंड कैन यू नैंड रिपीट? गेट अगर है तो उसमें मिनिमम इनपुट कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम इनपुट कितने हो सकते हैं? सर इनपुट तो 0 और 1 ही होंगे ना बस। अरे वो इनपुट नहीं, नंबर ऑफ इनपुट मतलब आप कितने इनपुट्स में दे सकते हो, ए बी सी? सर सर मैं बोल सकता हूँ क्या? पहले रवि को बोल रहे थे, उसके बाद में बोलता हूँ. रवि, आप ब्रजेश, ब्रजेश. सर मिनिमम जो होगा पॉसिबल वो 9 गेट में 2 होगा इनपुट, और मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है. हाँ, so the answer is correct. The minimum number of inputs possible in NAND gate are 2. तो 2 इनपुट तो होंगे ही होंगे. सिर्फ एक इन्वर्टर ही होता है जिसमें एक इनपुट होते हैं, बाकी सब में 2 या 2 से ज्यादा यस होते हैं. यस सर, इन्वर्टर ही होता है, एस्ट्रोलाइजर में भी मतलब 2 से ज्यादा ही होता है. तो रवि, यू शुड रिमेम्बर, जो भी हो याद रखना, नहीं तो फिर बाद में आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाओगे. यस सर. So now we should start our today's lab session. So the today's lab session aim is to implement the logic functions and or not, XOR, XNOR, and a logical expression with help of NAND and NOR gates. So NAND and NOR are called universal gate because all other gates or any Boolean expression can be implemented using these two gates. कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हो या कोई भी गेट हो जो पूरे वर्ल्ड में लाई करता है, वो आप नैंड या नॉर गेट से बना सकते हो, इसलिए उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं. तो जस्ट इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, अगर आप i3 या i7 प्रोसेसर लेते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नैंड या नॉर गेट ही होंगे, उसके अलावा कोई गेट्स नहीं होंगे. आपको जो भी बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है वो बने होंगे बेसिक नैंड या नॉर गेट से ही बने होंगे. तो सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ योर डिजिटल is your either NAND or NOR. So basically, if you see in this scenario, we are using NAND gate. So there is a reason why we are using NAND gate and why we are not using NOR gate. So mainly आप NAND ही gate use करते हो, NOR gate भी कोई use नहीं करता. So but you can use, but there is a problem of speed. So the speed of NOR gate is lesser than the NAND gate. So NAND gate can operate faster as compared to the NOR gate. तो इसके लिए हम लोग NOR gate यूज नहीं करते, NAND gate यूज करते हैं. So now this is your virtual lab link. So in this virtual lab link, we are having some issues, or you can say some wrong answers they are there. So you need to identify that wrong answers and you have to correct it. तो इस virtual lab में कुछ चीजें गलती है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी है and you should answer that this is wrong. So the same aim is there here also. So to implement a logic function and or not, x or x not, and a logical expression with the help of NAND or NOR as a universal gate. तो हमको ये सारे पहले गेट्स बनाने हैं और उसके बाद कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है या लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है. तो बोथ आर सेम थिंग, लॉजिकल एक्सप्रेशन का हो या बुलियन एक्सप्रेशन का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता. तो नाउ वी मूव टू द थियरी पार्ट. So in this theory, so we will see the introduction. So in the introduction part, you can see here
The logic gates are electronic circuits which perform logical function one or more inputs to produce one output. There are 7 logic gates. तो हमने पढ़े 7 logic gates कौन कौन से हैं. So AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR and XNOR. So these 7 gates are there. When all the input combination of logic gates are written in series and their corresponding outputs along with them. तो जब आप सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स लिखोगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसके आउटपुट्स लिखोगे तो उस टेबल को हम ट्रूथ टेबल कहते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. So just it's a revision of previous session. So what is truth table? Truth table is a combination of all possible combination of your inputs corresponding to its output. जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट के वो और उसके करस्पॉन्डिंग में उसके आउटपुट, उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल. So now we move to the today's experiment or today's task. So NAND gate as a universal gate. So why it is called universal gate? So whenever there is a question why NAND and NOR is called as universal gate, so you should answer in this way. NAND and NOR is called universal gate because you can made any or you can realize any other logical gate using NAND or NOR gate or any Boolean expression. So that's why NAND and NOR is called universal gate. So NAND and NOR को universal gate क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी दूसरा गेट और कोई भी Boolean फंक्शन आप इससे रियलाइज कर सकते हो, उससे बना सकते हो. That's why it is called as यूनिवर्सल गेट. तो हमारे को पहला टास्क क्या होगा? तो आपको क्या लगता है कि अगर नैंड गेट को मेरे को यूनिवर्सल गेट प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करोगे? सर ट्रूथ टेबल से. ओके, एनीवन एल्स? रवि हैज आंसर्ड. ब्रिजेश? यस सर. सर नैन गेट को अगर यूनिवर्सल गेट अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे और उसके उनमें इनपुट डालेंगे और वो इनपुट जो होगा जनरली सर यूज होगा नॉट और एंड गेट का और उसी के कंबाइन से सर हम डिफरेंट यूनिवर्सल गेट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ब्रिजेश, यूनिवर्सल गेट 2 ही है, नैंड और नॉर. ठीक है? हाँ, तो अभी हमारे को प्रूफ करना है कि ये यूनिवर्सल है. तो आप अगर कोई चीज को यूनिवर्सल प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कि ये जो चार्जर है ये यूनिवर्सल चार्जर है, तो आप क्या करोगे? तभी मोबाइल में लगाकर चेक करोगे कि चार्ज. सर उसमें सभी रूल्स फिट होने चाहिए. सर सबसे पहले तो सर यूनिवर्सल के लिए सर प्रूव करना पड़ेगा. यूनिवर्सल से सर हर एक गेट को सर निकालना पड़ेगा. जैसे नैन गेट से है सर नैन गेट निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. तो जैसे सर नैन गेट है, नैन गेट से सर हमको और गेट निकालना पड़ेगा, एंड गेट निकालना पड़ेगा, नॉट गेट निकालना पड़ेगा. तो उसके बाद सर ये प्रूव हो जाता है कि ये यूनिवर्सल गेट है. गुड. तो your answer is correct. We need to prove that NAND gate can be used as a AND gate, OR gate, NOT gate and XOR gate और XOR gate. तो ये मिनिमम जो गेट्स हैं वो आपके NAND and NOR से बन सकते हैं. ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. So first we will going to prove that NAND gate as a NOT gate. क्योंकि सबसे छोटा गेट कौन सा है? NOT gate. So we are going to prove that कि NAND gate जो है NOT gate की तरह यूज हो सकता है. Now this is a symbol for okay. So first we will draw the symbol of NAND gate and then we will go for proof. So in NAND gate we must have minimum 2 number of inputs. तो NAND gate में 2 inputs तो possible होंगे ही होंगे, minimum तो इतने होने ही चाहिए, तो ही वो NAND gate होगा. So if someone draw only 1 input then his answer is wrong.
नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? सर 2। नॉट गेट में 1 2 होते हैं कि एक ही होता है? एक ही होता है सर। एक ही One, sir. कॉम्बिनेशन होता है सर, एक 1 ही होता है, लेकिन उसमें यूज किया जाता है 2। यस सर। सर लेने के लिए, सुटेबल लेने के लिए। पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के 2 हो सकते हैं, दैट इज 0 एंड 1, बट इनपुट तो एक ही होता है। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर कितने इनपुट है? 2। यहाँ पे कितने इनपुट है? 1। तो आप ऐसा क्या करोगे कि 2 से 1 हो जाएगा? तो पहला ट्राई क्या कर सकते हो 2 से 1 करने के लिए? सर दोनों को कॉम्बिनेशन या ऐड कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे। यस, तो अगर मैं दोनों को Yes, दोनों को sir. शॉर्ट कर देता हूँ तो वो ऐसा होगा। This is A and this is Y. Now we will check whether this gate is working as a NOT gate or not. तो ये है NAND gate, ये है NOT gate, और मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया यूजिंग NAND gate. Now we need to check whether this configuration is working as a NOT gate or not. तो चलो देखते हैं। तो say for example, if someone has applied 0, अगर आपने यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। यस, Yes, नाउ वी विल ड्रॉ द sir. ट्रूथ टेबल। Yes, sir. हाँ, नाउ वी विल ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। तो मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ NAND गेट का ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल है NAND गेट का। नाउ वी हैव अप्लाइड दिस इनपुट। सही है, 0 0 आया है। तो यू हैव अप्लाइड दिस सर इनपुट। सही है। सही है, सो व्हाट विल बी योर आउटपुट? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? इट विल बी 1। ओके, नाउ in the second case we are going to apply 1. So we are going to apply 1. So if you applied 1, here will be, यहाँ पे भी 1 होगा, and here also you are getting 1. So both the input will be replaced by 1. Now this case is valid. आउटपुट 0। So output will be 0। 0. 0. So if you applied 0, you are getting 1, and if you applied 1, you are getting 0. So it is working as a inverter. अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, you have to remember this, that these two cases are invalid. ये केसेस कभी यूज नहीं हो सकते, कभी आएगा ही नहीं, नेवर यूज्ड, कभी हो ही नहीं सकता ना। आप यहाँ 0 दो तो यहाँ 0 हो, यहाँ 1 हो, ऐसा हो सकता है कभी? नो सर, जब तक सिंगल No, sir. दे रहा है तब तक वो अलग अलग हो ही नहीं सकते। सर सर हाँ बोलो ब्रिजेश। सर NAND गेट में तो सर मिनिमम 2 इनपुट्स होने चाहिए, तो फिर यहाँ पे सर आपने एक ही लिया है। कहाँ 2 तो है, ये तो रहे, ये 2 रहे, मैंने उन दोनों को शॉर्ट किया है। अच्छा, तो अगर एक बनाऊंगा तो गलत है। अगर someone has drawn this way तो वो गलत है, तो दिस इज रॉन्ग। अगर सर आपने ये ऐसा जो ऐसे कर दिया तो सही है। ओके, सर यहाँ पे जो यहाँ- ट्रूथ टेबल है NAND गेट का, वो तो हाँ। NANड गेट के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, NAND गेट का ट्रूथ टेबल तो NAND गेट के लिए एप्लीकेबल होगा। यस, और ये जो इसका कॉम्बिनेशन है वो इसमें नहीं आएगा, बस 2 ही आएगा। 2, क्योंकि हमने जब शॉर्ट कर दिया तो दोनों लाइन पे एक ही डेटा रह सकता, अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो दोनों पे या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। यहाँ पर तो 0 1 है, तो 0 1 तो कैसे जाएगा? यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 1 2, पॉसिबल नहीं है ना। यस सर, यस। हाँ, तो इसलिए दोनों जो केसेस है इनवैलिड है। So this configuration is working as an inverter. So this is the first theory what he is suggesting. So NAND gate as a NOT gate,
A NOT gate produces a complement of input, so it is working as an inverter. If you apply 0, you will get 1. If you apply 1, then you will get 0. So here they are deriving using Boolean expression. So आपको Boolean expression की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे दे सकते हो. So you will get a bar. So you can prove using truth table also. So that is the easiest way. So truth table क्या होगा? A का a bar, so 0 का 1, 1 का 0. And this is the configuration for NAND gate as a NOT gate. तो अगर आपको NOT gate पूछा हो तो आपको ये बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है. You should not draw this one. So you have to draw this one. This is the correct configuration for NAND as a NOT gate. So now we move to the second gate, second configuration. तो NAND के नाम में कौन सा गेट आ रहा है? सर एंड एंड. तो हम दूसरा वही गेट बनाएंगे जो उसके नाम के अंदर है. तो हम दूसरा गेट बनाएंगे NAND एज ए एंड गेट. So we are going to do this stuff. अब हमको ये करना है, NAND एज ए एंड गेट प्रूव करना. NAND गेट का ट्रुथ टेबल तो हमको पता ही है, तो पहला काम तो वही करते हैं कि उसका ट्रुथ टेबल वापस से देख लेते हैं. तो NAND गेट का ट्रुथ टेबल, NAND गेट का कॉन्फ़िगरेशन वी शुड कॉपी. तो ये रहा NAND गेट, 2 इनपुट NAND गेट. तो हम जो भी बनाएंगे सभी 2 इनपुट बनाएंगे. अगर 3 इनपुट बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो डोंट गो फॉर 3 इनपुट. अच्छा, अब NAND गेट को AND गेट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या ऐड करोगे जो NAND गेट AND गेट बन जाएगा? This is your NAND gate. A, B, here you are getting y equals to A dot B bar. अब आपको इसको एंड बनाना है तो ये बार हटाना है. बार हटाने के लिए क्या करोगे? बस वहां पे लगा देंगे. क्या लगाएंगे? उल्टा गेट लगा देंगे. जैसे कौन सा? नॉट गेट. उल्टा गेट कोई गेट नहीं होता है. So whenever you want to invert the data, you have to add a and not gate inverter. तो नॉट गेट आप कैसे बनाओगे? अब इसमें बोला है NAND एज ए एंड गेट. तो आप यहाँ पे नॉट गेट नहीं बना सकते, आपको NANड एज ए नॉट बनाना पड़ेगा. तो जो पिछला कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया है, which you have seen here, we have to draw the figure only. So now what we will do, we will draw a inverter. अब ये इन्वर्टर ही है. So what you will get here, A dot B double bar. So if you get A dot B double bar, that will be equals to A dot B. So this is the Boolean expression for AND gate. So we have built AND gate using NAND gate. यहाँ पर और कोई गेट यूज किया है हमने इस फिगर में? नो सर. तो हाँ, so that's why this is called universal gate, क्योंकि आपने NAND गेट को यूज करके AND गेट बना लिया. So whenever you are able to build and all other gates using one gate, then that gate should be called as universal gate. Up to this point, if you are having any doubt, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो. वो एक बार और कर दीजिए तो एंड गेट का. कौन सा? एंड गेट. ओके. So we know the truth table of NAND gate is opposite to AND gate. तो NAND gate का जो truth table है वो अपोजिट आता है AND gate का. तो AND gate का आउटपुट क्या आना चाहिए?
0 0 0 1. So it should be 0 0 0 1. So how we can achieve this? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? By adding a inverter. तो हमको यहाँ पर एक इन्वर्टर ऐड करना है NAND गेट के आगे. तो इन्वर्टर ऐड करना है मतलब आप कैसे ऐड कर सकते हैं इन्वर्टर? तो ये NAND गेट है, और ये इन्वर्टर हो गया. बट अगर ये इन्वर्टर बनाया तो ये यूनिवर्सल गेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पूरा जो एंड गेट था उसको हमें ऐसे बनाना था कि वहां पर दूसरा कोई और गेट ना आए. तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही सीख लिया है कि हाउ टू बिल्ड नॉट गेट यूजिंग NAND गेट. So in the first session we have seen that how to implement NOT gate using NAND gate. So what you can do, you just replace this inverter by this NAND gate. So if you replace this inverter by this NAND gate or this NAND gate configuration, then all the gates here is NAND gate. So सारे गेट यहाँ पर कौन से हैं? NAND gate है. So this configuration is named as AND gate. And we have built AND gate using NAND gate. तो हमने जो बनाया यहाँ पर AND gate, वो NAND gate को यूज करके बनाया. इसमें और कोई गेट है ही नहीं. आपने 7 गेट पढ़े, 7 गेट में से कोई भी और गेट यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ NAND गेट यूज किया टू मेड AND गेट. तो सिंपल सा है. यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है A.D बार. अब मेरे को एक और बार चाहिए, तो इन्वर्टर ऐड करना है. तो इन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए. तो इन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले देख लिया था कि ऐसा होता है, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर यस सर. तो वो इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा. तो इसके आगे वो लगा दूंगा. तो नॉट गेट का रिप्लेसमेंट ही है वो, और कुछ नहीं है. तो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी और दिस कॉन्फ़िगरेशन विल वर्क एज AND गेट. So now we move to the third configuration. अब कौन सा बचा है हमारे पास? और सर NAND as a OR gate. So now we move to that configuration. So we will see that theory and then we will move. So NAND as a AND gate. So you can see here he has drawn the same figure. उसने भी same figure बनाया, truth table बनाया. Truth table तो आप easily बना सकते हो. Now NAND as a OR gate. So third configuration. So this is the last configuration. अगर एग्जाम में पूछा हो कि proof NAND as a universal gate, तो you have to made all basic gates. आपको सिर्फ बेसिक गेट ही बनाना है, यूनिवर्सल गेट आपको नहीं बनाने. आपको XOR और एक्सक्लूसिव गेट बनाने की जरूरत नहीं है. तो यू शुड नॉट ड्रॉ XOR एंड XNOR. तो आपको यही 3 बनाना है. XOR और XNOR पूछा होगा तो उसका क्वेश्चन अलग होगा. So they will not ask for the XOR and XNOR. So now we will see how to implement OR gate. तो हमने एक बार तो ट्राई कर लिया. अभी पीछे इन्वर्टर कहाँ लगाया था? सर आगे लगाया था उसमें. अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में हम उसके बैक साइड पे लगाएंगे इन्वर्टर. तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इन्वर्टर ऑन द फ्रंट साइड ऑफ NAND गेट, वी विल ड्रॉ ऑन द बैक साइड ऑफ NAND गेट. और हम इनपुट पे लगा देंगे. पहले आउटपुट पे लगाया, अब इनपुट पे लगाएंगे. सिर्फ याद रखने के लिए. उसका एक्सप्रेशन से डेरिवेशन होता है, बट डेरिवेशन के चक्कर में जाओगे तो इट विल टेक योर टाइम. सो फॉर रिमेम्बरिंग you can just remember using this way. So if you want to implement the same gate which is present in its name, जो उसके नाम के अंदर ही जो दूसरा गेट है उसमें हमेशा आगे की तरफ इन्वर्टर लगाना है, और जो उसके नाम के अपोजिट है उसमें पीछे की तरफ इन्वर्टर लगाना है. So this is A, this is B. यहाँ पे क्या मिलेगा? So say for example this is X and this is Y. So what will be the value of X and what will be the value of Y?
सर x का वैल्यू होगा a का बार, अब b का, ये y का वैल्यू होगा b का बार। Okay, yes, it's correct. This is A bar and this is B bar. So basically this is NOT gate only. ये NOT gate ही है. NOT gate को हमने NAND की configuration से ड्रॉ किया है. अब यहाँ पे क्या मिलेगा? X dot Y whole bar. Now we write the equivalent of X. X equivalent is A bar dot Y का equivalent है B bar and whole bar. Now we are having a one theorem which you need to remember. This, that is known as De Morgan's theorem, or it is also known as duality. Duality भी बोलते हैं और De Morgan's theorem भी बोलते हैं. So De Morgan's theorem states that break the line and change the sign. So what does it mean? So this is your expression. Okay. So here the bigger line is this one. So you need ये to plus break b this होगा। line and you need to change the sign. तो डॉट की जगह दूसरा साइन प्लस होगा और प्लस की जगह दूसरा साइन डॉट होगा. तो इस तरह से साइन चेंज करना है. अगर डॉट होगा तो उसकी जगह प्लस करना है और प्लस होगा तो उसकी जगह पे डॉट करना है. तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन ए डबल बार. ये लाइन ब्रेक हो गई, फिर यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे. सो डॉट से ये प्लस हो गया, देन वी आर हैविंग बी डबल बार. तो ये लाइन भी ब्रेक हो गई. So here the line has been broken and we have changed the sign. So that is this for remembering what the De Morgan's theorem is. Break the line and change the sign. लाइन को जो ऊपर की लाइन बड़ी है, दो वेरिएबल के ऊपर सेम लाइन हो तो उसको आप तोड़ सकते हो, और तोड़ोगे तो क्या करोगे, जो बीच में उन दोनों ऑपरेटर के बीच में साइन है उसको चेंज करना है. तो ए एंड बी आर डिफरेंट ऑपरेंट एंड बीच में ऑपरेटर है डॉट. तो डॉट ऑपरेटर को चेंज करके प्लस में करना है और ऑपरेंट के ऊपर जो बार है वो अलग अलग हो जाएगा. तो यहाँ पर ए के ऊपर अलग बार चला गया और बी के ऊपर अलग बार चला गया. नाउ ए डबल बार इज इक्वल टू ए एंड बी डबल बार इज इक्वल टू बी. नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन ए प्लस बी एंड दिस इज फॉर OR gate. So now in this way you can build NAND as a OR gate. So आप boolean expression से prove कर सकते हो, or you can go for the truth table. So you can apply 0 0. If you apply 0 0, you will get here 1 1, and you can check what will be the output of this NAND gate. So NAND gate का truth table हमने पहले ही देख लिया है. So we will see if you are having 1 1, the output will be 0. So your output will be 0. तो आप सारे कॉम्बिनेशन से ट्राई करके आप इसको प्रूव कर सकते हो. So you can prove either using boolean expressions, or you can use different input combinations like 0 0 0 1 1 0 1. Is it clear? ये clear Yes, है sir. सबको? If anyone Yes, is sir. having doubt, you can ask. किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो. Okay, so if you're not having any doubt, we will see that theory part so that you can see what they have mentioned. हम देखते हैं theory में उन्होंने क्या लिखा है. So they have written the same thing. So they are using also the De Morgan's theorem. So here you are getting A bar, here you are getting B bar, A bar, B bar, whole bar. So they are using dash instead of you can use dash or you can use bar. So now we are having a complete bar. If you want to break that bar, then you are having A double bar plus B double bar. Then that will be equal to A plus B. Or you can use this truth table to verify that expression. So now we are skipping this part. NAND as a XOR gate, NAND as a XNOR gate. So वो दो आप अभी skip कर दो फिलहाल के लिए. We will see on the later how to use that thing. So in the lecture we are going to see how to use Boolean algebra to implement this configuration. In the lab we are going to see how to simplify using basic gates only. So now we move to the NOR as a universal gate. So NOR is also called as a universal gate. So why it is called universal gate? Because NAND can be used as a all other gates. The same way NOR can be used to implement all logical functions like AND, OR, XNOR, XOR. So that why it is called as a universal gate. तो सभी गेट इससे आप बना सकते हो, तो इसलिए इसको universal gate
कहते हैं। So first again we will start from the beginning, NOR as a NOT gate. तो जैसे यहाँ पर बनाया था हमने NAND as a NOT gate, so here on the right hand side we will use so first we will draw the symbol of NOR gate. Basic. So this is the symbol of NOR gate. So we are having minimum 2 inputs in case of NOR gate. So we are having A and B. And this is your output. So just I will see the truth table. So anyone can tell me the what will be the truth table for NOR gate. NOR gate के लिए क्या truth table होगा? Yes, sir. Sir, for 0 0 it is 1, and for all the other cases it will be 0. Okay. सर इसको सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर, जैसे कि यहाँ पर ए इनपुट है और बी इनपुट है, दोनों के लिए सर आप बताए थे कि ए के लिए 0 0 1 1 लेना है और बी के लिए 0 1 0 1 लेना है, तो फिर सर इसको ए डैश मतलब और गेट लगाएंगे और में सर जुटता है उसको जोड़कर ए डैश बनाएंगे और ए डैश को सर कम्प्लीमेंट यानी बाहर लगा देंगे, तो वही सर हो जाएगा, तो 1 0 0 0 हो जाएगा। अगेन रिपीट वन, क्या आप क्या करना चाहते हैं इसमें? सर जैसे कि यहाँ पर सर नॉर गेट है, तो नॉर गेट सर जनरली नॉट और से मिल के बनता है, कंबाइन होके बनता है, तो सर इसमें सबसे पहले सर ए लेते हैं, ए इनपुट है, ए इनपुट में सर 0 0 1 1 रखते हैं और बी इनपुट में सर 0 1 0 1 रखते हैं और सर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद सर ए डैश हो जाता है, यानी कुछ भी रख सकते हैं, वाई डैश रख सकते हैं, वाई डैश रख सकते हैं, तो उसमें सर 0 1 1 आ जाएगा, फिर सर उसको जो वाई डैश आएगा उसको सर कम्प्लीमेंट अर्थात सर उसको बार लगा देंगे और वही बार जो है सर वो मेरा नॉर गेट हो जाएगा, यानी 1 0 0। ओके, सो उसमें ब्रिजेश उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने नैंड को कैसे नॉट बनाया था? सिंपल सी बात है, नॉट गेट में कितने इनपुट्स होते हैं? सर शॉर्ट करके। हाँ नहीं, पहले नॉट गेट में दो होते हैं, नॉट गेट वन सर 1 1 1, लेकिन पॉसिबल दो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बेटा, उसकी बात नहीं करने की। जब गेट में मैं इनपुट की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कितने पिन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोलूंगा तब आपको उसमें बताना है कि एक इनपुट के कितने पॉसिबल हो सकते हैं या 2 इनपुट है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दैट पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 2 n। तो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन तभी आएगा जब ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, तब तक पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं आती है। ओके सर, ठीक है, तो अब यहाँ पर दो इनपुट है, दो को एक कैसे कर सकते हैं? वही शॉर्ट करके। सो जस्ट वी विल ट्राई दैट कि वेदर इट इज गोइंग टू वर्क ऑन नॉट। तो सबसे पहला किसी को भी ध्यान आएगा तो क्या करेगा कि 2 को 1 करना है, तो शॉर्ट करने के अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। Just a minute. So mouse was not working properly on paper, so that's why I taken that other thing. So now we will short this thing. So we will short both the inputs. हम दोनों input को short कर देंगे।
तो सबसे पहला तो क्या है, बेसिक हमको याद रहे तो हमको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं तो सब याद तो नहीं रह सकती भाई, इतना रट तो नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हमको समझ के करनी पड़ती है कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो द बेसिक थिंग कि हाँ हमको ऐसे याद रखेंगे तो बहुत इजीली याद रहेगा, बस इसीलिए आपको इस तरीके से बताया। तो 2 को 1 करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसको शॉर्ट कर दो, और कोई तरीका नहीं है। तो अब 2 को 1 कर दिया। नाउ वी विल अप्लाई 0 एंड 1। तो पहले यहाँ पर ले लेते हैं, तो वी आर अप्लाइंग 0 हियर। तो आपने 0 अप्लाई किया तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? 1. तो दिस विल बी द केस। तो ये वाला केस है आपके पास। तो 0 0, so output will be 1. Now if you apply 1, then what will be the output? So we need to see that. 0. So output will be 0. So you can now clearly see that thing. आप आराम से देख सकते हो, if you apply 0 you are getting 1, if you applying 1 you are getting 0. तो 0 अप्लाई करता हूँ तो 1 मिलता है, 1 अप्लाई करता हूँ तो 0 मिलता है। So that is the truth table for inverter. So this, in this way you can say this configuration is known as inverter configuration. और बाकी दोनों केसेस तो कभी ऑकर ही नहीं होंगे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये तो इनवैलिड है जैसे पिछले में से। ओके, तो इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. नॉर एज ए नॉट गेट। ओके, तो अब नॉर के नाम में कौन सा दूसरा गेट आता है? Or, sir. और तो पहले वही, हमेशा जिस गेट का नाम आ रहा है पहले वही इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको इजी रहेगा। तो नैंड के नाम में एंड आता था इसलिए पहले वहां एंड किया, अब नॉर के नाम में और आता है तो वो करेंगे। So we are going to implement NOR as a OR gate. So we have already seen, अगर NOR को और करना है तो क्या करेंगे? तो क्या करोगे कि इसका जो ये ट्रुथ टेबल है इसका आउटपुट अपोजिट हो जाए। OR गेट का आउटपुट क्या होता है? When any input is 1, then output will be 1. So here it will be 0 0 for 0. For other case it will be 1. तो क्या करना है? आउटपुट उल्टा करना है, 1 हो वहां पर 0 करना है, जहां पर 0 है वहां पे 1 करना है। तो क्या करोगे? इन्वर्टर लगा रहा है। इन्वर्टर नोट लगाएंगे। लगाना है, पर इन्वर्टर कौन सा इन्वर्टर लगाना है? नॉर एज ए इन्वर्टर, सिंपल इन्वर्टर नहीं। तो नॉर का इन्वर्टर हमने पहले में सीख लिया है, तो वी विल अप्लाई दैट। तो वी विल ऐड इन्वर्टर। Now we will see the expression. So say for example this is x, so that x will be a plus b bar. Then here y will be, this is inverter, so a plus b bar
and bar. So this will be equals to a plus b. So this is the logic expression for OR gate. So whatever we have implemented, that will be going to work as a OR gate. So this is true. So ये सही है आपका. तो नॉर एज अ OR गेट बनाना है तो आगे वहां पे नॉट गेट लगा दो. तो हमने आउटपुट पे नॉट गेट लगा के देख लिया. अब कहाँ पे बचा, सिर्फ इनपुट में ही नॉट गेट लगा सकते हैं. यस और नो? दो ही जगह नॉट गेट लगा सकते हो आप, या तो आगे या तो पीछे. ऐसा ही है ना? हेलो यस एवरीवन. सर. यस सर. इसके अलावा तो कहीं नॉट गेट का यूज नहीं कर सकते. नहीं. तो आप क्या करेंगे, आगे लगा के चेक कर लिया तो आगे लगाते हैं तो और गेट बनता है, तो आप क्या करेंगे, पीछे लगाएंगे. तो पीछे लगाएंगे तो कौन सा गेट बनेगा? तो नाउ वी विल ट्राई इट कि हाँ क्या होता है. यस सर. एक ही मिनट. Students, just take a 2 minute, 3 minute break. So I have some work. So till now I will complete that work and we will continue after. तो आप 2 या 3 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करें.
Okay, so shall we continue? Yes, sir. Hello? Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we have to implement OR gate using NAND gate. So now what you can do, you can add inverters on the back side. So now here we have added 2 inverters. तो यहाँ पर एक NOT gate लगा है, यहाँ पे एक NOT gate लगा है, यहाँ पर ये NOR बनाना था ना. Okay. So NOR gate as a AND gate. We want to implement that. तो कैसे करेंगे? पीछे इन्वर्टर लगा में सर इधर जिनको सर इमेज नॉट व्यू क्या नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है. Rinku, can you type your query in the chat window? Screen is not visible. Okay, let me see. So this is the last implementation which we are going to see to prove where to prove that NOR gate is a universal gate. So NOR gate can be implemented and AND gate can be implemented using NOR gate. So we have already tried with implementing or adding an inverter in the output of NOR gate. So हमने output में NOR gate के NOT gate लगाया. So now we will apply inverter on the input side. So input side में लगाएंगे. So this is first input. So we will apply NOT gate here. We will have second input. We will apply inverter here also. Now both the inputs will be going to NOR gate. Now we will check whether this configuration is working as a AND gate or not. So आप check करेंगे कि ये configuration AND gate की तरह work करता है कि नहीं. So this is A bar. So this is x equals to A bar. Y equals to B bar. And Z equals to A plus, X plus Y bar. Now replace X bar by its equivalent and Y bar by its equivalent. So X का equivalent है A bar और Y का equivalent है B bar. So we will replace by those terms. So X A double A bar plus
B bar whole bar. So now this will be the expression. Now again apply the De Morgan theorem. तो अब फिर से De Morgan theorem लगानी है. So break the light, change the sign. So we will have A double bar plus की जगह पे dot B double bar. So this will be equals to A dot B, and this is the Boolean expression for AND gate. So hence this configuration is working as a AND gate. So in this way you can implement AND gate using NOR gate. So is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है NAND एज यूनिवर्सल गेट और NOR एज यूनिवर्सल गेट, तो आपको ये 3 कॉन्फ़िगरेशन ही बनानी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. तो जस्ट वी विल सी द थियरी पार्ट. हाँ बोलो. तो NOR एज यूनिवर्सल हाँ गेट. सर, मुझे हाँ बच्चा बोलो. सर पूछना था कि जो नैंड गेट में आपने उसको और गेट की तरह लिया था, तो उसमें आपने पीछे यूज किया था, फिर यहाँ पे नॉर को एंड की तरह यूज किया, तो इसमें भी आपने 2 को पीछे किया, यानी कि सर ऑपोजिट अगर गेट रहे तो उसमें ऑपोजिट साइड में ऐड करेंगे. अगर उसके अंदर उसका नाम है तो आगे इन्वर्टर लगाना है, अगर उसका नाम नहीं है तो उसके पीछे इन्वर्टर लगाना है. ये इस तरह से याद रख सकते हैं. ओके सर. सिर्फ वो याद रखने का तरीका है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो होगा. तो यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बनाई होंगी. तो नाउ वी आर अप टू दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड. तो एग्जाम में आए तो कैसा लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ. तो NAND एज यूनिवर्सल गेट, तो आपको ऐसे बनाना है. सो दिस डायग्राम यू शुड ड्रॉ. तो आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन बनानी है एंड वन यू कंप्लीट दिस विल बी योर आंसर. तो ये आंसर आपका सही है, NAND एज ए यूनिवर्सल गेट. नाउ वी हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम बूलियन एक्सप्रेशन. अब बूलियन एक्सप्रेशन भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी तो देखना पड़ेगा कि कैसे करना है. तो हम पहले जाएंगे जो आपको बहुत इजीली आ जाएगा कि आपको इस फिगर की जगह क्या रखना है. So say for example your expression is y equals to a bar b plus ab bar. ये कौन सा गेट का एक्सप्रेशन है? सर हाँ ब्रिजेश. सर नॉट एज ए और. नहीं, एक्सप्रेशन कौन से गेट का है? a बार b प्लस ए बी बार. कहीं पे देखा है पहले ये एक्सप्रेशन? मैंने अब तक नहीं बताया है, बट मैं आपने 12th साइंस में पढ़ा होगा इसलिए मैंने पूछा है. याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जस्ट यू टेल मी दैट. नो सर, नो सर. किसी को याद नहीं? आई थिंक एक्स और का सर. कौन सा? आई एम नॉट कंफर्म. ओके, कोई और? चंदन, दिव्यांशु, कशिश, प्रियंका, बेटा आप लोग भी क्लास में ही हो? तो एवरीवन शुड आंसर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को 4 लोग आंसर करेंगे, वो ऐसा नहीं करना है, सभी लोग आंसर करने चाहिए. So this is a expression for XOR gate. नहीं बोल सकता. क्या ब्रिजेश? सर क्या आवाज इसको बोल? जोर गेट नहीं बोल सकते. नहीं, XOR गेट ही सर बोलते हैं. इसको जो सर XOR. हाँ, एक्सक्लूसिव और.
उसका शॉर्ट फॉर्म है। यस सर, यस सर। हाँ तो बोल सकते एक्सक्लूसिव और गेट है उस, ये एक्सक्लूसिव और गेट का एक्सप्रेशन है, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बट आप अभी के लिए याद रखो कि एक्सक्लूसिव और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ये होता है। ठीक है, नाउ मेरे को यही इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला स्टेप जो है इम्प्लीमेंटेशन का, तो बहुत बेसिकली जाएंगे, बहुत ही सिंपल में। तो वी आर नॉट गोइंग इन बूलियन एक्सप्रेशन, तो क्योंकि मैंने बूलियन एक्सप्रेशन अभी पढ़ाया नहीं है बूलियन अलजेब्रा, तो उसमें नहीं जाएंगे, हम सिंपली फिगर से ही सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, implement this boolean expression using and or inverter. So implement this expression using AY gate. That is the first step. Now अब AOI को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जस्ट सी इट केयरफुली। इसमें सबसे छोटा गेट कौन सा है? सर नॉट येट। ओके, कौन कौन सा नॉट गेट है? दो एक्सप्रेशन में नॉट गेट है, तो आई विल अंडरलाइन दोस, बी बार ए एंड बी। ए बार। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा गेट है वही इंप्लीमेंट करना है, तो वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दोस गेट्स। तो दिस इज ए बार, and next you want to implement b bar, so b bar। साथ ही साथ नंबरिंग भी करते जाना है। ये पहला गेट है तो पहला गेट का नंबर कर दो 1, तो दिस इज योर गेट नंबर 1, दिस इज योर गेट नंबर 2, हियर बी इनपुट इज देयर। तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो गए। तो से फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज इक्वल्स टू x, this is equals to y. Now your expression will become y equals to a बार किसके से रिप्लेस होगा? x b प्लस ए वाई। ओके, अब दूसरा कौन सा छोटा गेट है? सर और सर और यहाँ पे भी और गेट है और यहाँ पे भी और गेट है। तो नाउ वी वांट टू इम्प्लीमेंट और गेट। तो कोई भी आप पहला बना सकते हो, तो आइदर यू कैन इम्प्लीमेंट x डॉट बी और यू कैन इम्प्लीमेंट a डॉट वाई। तो आप x डॉट बी भी पहले इम्प्लीमेंट कर सकते हो या दूसरे पहले a डॉट वाई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप पहला कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? एक्स डॉट बी। x डॉट बी। तो b तो यहाँ पर है, तो आई विल टेक ए आउट फ्रॉम हियर b। अब कौन सा गेट यहाँ पर ऐड करना है? एंड गेट। तो आई विल ऐड ए एंड गेट हियर। तो जहां पे भी बनाओ वहां पे थोड़ा डॉट कर देना ताकि पता चले कि वहां कॉन्टेक्ट बना है। So this gate is over. Now second expression we need a dot y. So we will take a from here and we are implementing here. So this is expression x dot b and this is for a dot y. अब ये दोनों के बीच में है, तो अब सपोज कर लो ये है m और ये है n। So now we need y
इक्वल्स टू m प्लस n। तो अब कौन सा गेट है इन दोनों के बीच में? और सर So now we need OR gate. So and की और प्लस साइन और किसके लिए सर होता है? और गेट। So we are going to implement. So this will be now final expression. So this will be your y और बीच में जो भी y है इंटरमीडिएट y है, तो वो भूल जाना। So this is your final output और we will replace by output. Okay, so इतने में कोई डाउट? नो सर। रिंकू, यस टेल मी, क्या डाउट है? Sir, explain it again, sir. ओके, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया है रिंकू, फर्स्ट ट्राई टू कम अप विद द स्मॉलेस्ट गेट अवेलेबल इन दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे छोटा जो गेट इस एक्सप्रेशन के अंदर हो सकता है वो फाइंड करना है। सबसे छोटा गेट हमेशा नॉट गेट ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हियर वी आर यूजिंग टू नॉट गेट, फर्स्ट वन इज बी बार, सेकंड वन इज ए बार। तो वी हैव इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट ए बार एंड बी बार, तो पहले हमने वो दोनों इम्प्लीमेंट कर दिए, तो उन दोनों का नंबर दे Yes. दिया 1। देन सेकंड एक्सप्रेशन क्या किया कि ए बार को मैंने एक्स से रिप्लेस किया और वाई बार को बी से रिप्लेस किया। तो से फॉर एग्जांपल इसका इक्विवेलेंट ए बार एक्स है और बी बार वाई है। तो नाउ आई हैव रिटन द एक्सप्रेशन अगेन यूजिंग एक्स एंड वाई। तो आपके एक्सप्रेशन Yes. ये वाई अलग है, ये आउटपुट वाला वाई है, तो इस वाई और इस वाई के बीच में कंफ्यूज मत होना। नाउ एक्स डॉट बी और ए डॉट वाई में सबसे छोटा गेट कौन सा हो सकता है? पहले आप डॉट वाला इंप्लीमेंट करोगे तो ही तो प्लस कर पाओगे। Yes, sir. तो पहले ए डॉट वाई भी कर सकते हो या एक्स डॉट बी भी कर सकते हो, तो आपको जो पहले करना है आपकी चॉइस है। तो आई हैव इम्प्लीमेंटेड ए डॉट एक्स डॉट बी। तो एक्स डॉट बी चाहिए तो एक्स तो ये रहा, अब मुझे यहाँ पर बी चाहिए था, बी मैंने यहाँ से ले लिया और उन दोनों के बीच में एंड गेट रख दिया। सेम वे ए डॉट वाई, तो ए मेरे को चाहिए था तो ए यहाँ से ले लिया, वाई यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में एंड गेट लगा दिया। Now I have all again replaced its equivalent. So x dot b will be equal to m, a dot y equals to n. So now the expression will become y equals to m plus n. तो इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है? और गेट। और यहाँ पर कौन सा गेट है? Or And get. तो अब वो दोनों किस में जाएंगे? और गेट में। So that's why these two outputs gone into or gate. Is it clear, इनको? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Now we move to the step number 2. सर एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब एक्स और मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व हाँ, करना है क्या? किसी भी एक्सप्रेशन को नैंड या नॉर गेट से रिप्लेस करना है। तो हम पहले अभी सीखेंगे नैंड गेट से, ठीक है? अभी ये जो डायग्राम है उसमें सिर्फ नैंड गेट रहेंगे, कैसे करना है वो बताना है। अब कैसे करना है वो सीखेंगे। रिप्लेस ऑल गेट्स बाय इट्स नैंड इक्विवेलेंट। अब क्या करना है, मेरे को ये जो गेट डायग्राम बनाया है उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है। तो पहला गेट कौन सा है? नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नंबर, बिना नंबर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला गेट कौन सा है? सर सर नो। नो तो हमने पहले, दे सकते हैं सर। हाँ क्या बोलो? हेलो चंदन, यस हेलो चंदन। यस सर। हाँ क्या बोल रहे थे, बोलो। सर वन और वन नंबर इज योर नॉट फर्स्ट गेट। गेट तो नॉट हाँ, तो उसको किससे रिप्लेस किया? इस कॉन्फ़िगरेशन से। ये नॉट नैंडी गेट, ये नॉट गेट ही है, यस सर। यस और नो? तो राइट हियर Yes. 1, ओके हियर इट इज ए। तो आपको जो इनपुट आ रहा था वो तो उसमें चेंज करने नहीं है, आपको सिर्फ
जो उसका इक्विवेलेंट है उससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर पहला रिप्लेस हो गया। दूसरा कौन सा गेट है? होता है लेकिन मतलब कि ज्यादा नहीं जा रहा है। अभी अभी सॉरी सर। हाँ, कौन सा है दूसरा गेट? कौन सा है? देखो इस फिगर में दूसरा एंड गेट गेट कौन सा है? सर, एंड गेट है। नॉट गेट। एंड गेट है। जरा नंबरिंग चेक करो, यहाँ पर 1 नॉट है। दूसरा नॉट कौन गेट सा है। है? दूसरा भी नॉट गेट है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन वापस रिपीट होगी। तो इसका इनपुट बस चेंज होगा बी, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सर फिगर नहीं दिख रहा है अच्छे से। ओके, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो दिस इज नॉट गेट। अब थर्ड नंबर का गेट कौन सा है यहाँ पर? एंड गेट। एंड गेट। तो एंड गेट का इक्विवेलेंट क्या होता है? ये लिखा है यहाँ पर। ओके, तो एंड नैंड फॉलोड बाय नॉट। तो अब यहां पर क्या करेंगे? नैंड गेट। अब इसके दो इनपुट है, तो अब चेक करना पड़ेगा। ये वाले थर्ड वाले गेट का दूसरा इनपुट कहां से आ रहा था? बी से। तो इसमें भी बी से आएगा। नाउ इसके आगे इन्वर्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि एंड गेट इंप्लीमेंट करना है। नाउ दिस टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एंड गेट। तो दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3। ये पूरा का पूरा ब्लॉक 3 ही है। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है एंड गेट है। तो इज इट क्लियर व्हाट आई हैव डिड? यस सर। मैंने सिर्फ उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। नाउ द सेकंड फोर्थ नंबर गेट इज आल्सो एंड गेट। चौथा नंबर गेट भी एंड गेट है। एक इनपुट ए से और एक इनपुट बी बार है। तो एक तो यही है, दूसरा ए से आ रहा है, तो वो भी रिप्लेस कर दो। तो एक यहां से आ रहा है। So this is fourth, and we need a inverter. This is also fourth. ये दोनों फोर्थ नंबर है। नाउ फिफ्थ गेट कौन सा है? और गेट सर। और गेट। और गेट का इक्विवेलेंट क्या है? यहाँ देखो, दो इन्वर्टर पीछे और एक आगे नैंड गेट। So we will draw that figure on. So first I will enclose this figure so that you can understand कि हाँ ये वाला figure है। Then 5, we need 2 inverters on the back side. So we will draw with brown color so we can see. तो दो इन्वर्टर बैक साइड में, तो एक यहाँ पे लगेगा, एक दूसरे इसमें लगेगा, और आगे एक नैंड गेट। So these three combine together to form OR gate. So this is 5, this is 5, this is 5. अब मैंने नंबरिंग इसलिए की है कि कभी आप मिस्टेक ना करो, कि आप कभी भी भूल नहीं जाओ कि हाँ अगर आपको OR गेट से रिप्लेस करना है तो आपको OR गेट का इक्विवेलेंट एटलीस्ट 3 नैंड गेट होने चाहिए उसमें। तो अगर 3 नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं आपने मिस्टेक कर दी। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव गिवन द नंबर अप टू दिस पॉइंट। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो पूछो। सर इसको ट्रूथ टेबल से भी इसको ट्रूथ टेबल से भी निकाल सकते हैं सर? नहीं निकाल सकते ट्रूथ टेबल से। क्या निकाल सकते हैं? ट्रूथ टेबल से नहीं, बूलियन एक्सप्रेशन से। सर बुलियन, यस सर, बुलियन अलजेब्रा से तो सर उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ट्रूथ टेबल से सर उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन सर निकाल सकते। नहीं कर पाओगे आप ट्रूथ टेबल से। ट्राई करके देखना एक बार। आप यस सर। नैंड गेट से नहीं बना, नैंड गेट से नहीं बना पाओगे। नहीं सर, जॉर गेट से बोल रहे हैं। क्या? जॉर गेट जॉर नहीं होता, यस सर। एक्सऑर। एक्सऑर सर अभी चेंज हो गया, पहले सर हम लोग जॉर ही पढ़ते थे। हाँ पता है, एक्सऑर उसका नाम है,
एक्सक्लूसिव को एक्स लिखते हैं खाली, ठीक है। यस सर। वो सही है, लेकिन कोई पूछे तो उसको कभी जोर मत बोलना, वो हमारे लिए होता है। यू शुड राइट एक्स फॉर इट, ओके सर। ठीक है। So now we move to the last step, step 3. Replace two inverters on a line by a simple line. अगर दो इन्वर्टर एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो उसको आपको सिंपल लाइन से रिप्लेस करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर ये एक इन्वर्टर है और ये एक इन्वर्टर है, या तो ऐसे एक लाइन बनाओ कि दोनों इक्वल ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इज इट ट्रू? यस सर। अमन, अंकित, आर्यन, अमन, अमन, अंकित, रोशन, यस सर। ये सही है। दो इन्वर्टर एक लाइन पर है तो उसको मैं रिप्लेस करके एक लाइन ही ड्रॉ कर सकता हूँ, दो इन्वर्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यस सर। सही है, तो सही ही है। आप जस्ट जी। चेक कर सकते हो, यहाँ पर ए है तो इंटरमीडिएट में क्या जाएगा? ए बार, और लास्ट में क्या जाएगा? ए डबल बार, एंड ए डबल बार इज इक्वल टू ए। और यहाँ पर लाइन पर अगर ए दोगे तो वही अवेलेबल यहाँ होगा, तो ए इधर भी है और ए इधर भी है। तो एक ही लाइन पे अगर दो इन्वर्टर आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यू कैन रिप्लेस टू इन्वर्टर्स बाय ए सिंगल लाइन। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं दो इन्वर्टर्स कहाँ कहाँ पे है। तो ये दो रहे 3 और 5 नंबर के इन्वर्टर्स एक ही लाइन पर, और ये दो रहे एक ही लाइन पर। नाउ यू कैन रिमूव दीज टू इन्वर्टर्स। नाउ आफ्टर रिमूविंग दिस इन्वर्टर्स, ड्रॉ द फिगर अगेन। दैट विल बी योर implementation of XOR गेट यूजिंग NAND गेट। तो वो आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब यही फिगर वापस बनानी है, सो आई विल जस्ट कॉपी इट कि वापस मेरे को बनाना ना पड़े। so I will just copy it, this figure. अब ये दो इन्वर्टर जो एक ही लाइन पर है उनको डिलीट कर देना है। तो आई विल जस्ट रिमूव दोस थिंग्स। तो ये डिलीट हो गए और ये भी डिलीट हो गया। नाउ यू ड्रॉ द लाइन डायरेक्टली फ्रॉम देयर। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो जाएगी। नाउ दिस इज द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर XOR यूजिंग NAND गेट। तो इस तरीके से आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दिया हो, आप उसको NAND गेट से बना सकते हो। तो सबको आ गया समझ में कि नहीं आया किसी को? ये वापस रिपीट करना है। Okay, so now we are having another expression, so you can try
that expression y equals to a dot b plus a bar dot b bar. So now this is your expression. So this is expression for XNOR gate. तो ये XNOR gate का expression है. तो आपको ये implement करके try करो कि होता है कि नहीं आपको. So take your 5 to 7 minutes and try to implement and check whether you are able to implement this expression using NAND gate or not. तो equivalent यहाँ दिया है, so you can see this figure. जो भी equivalent है वो, तो आपको expression में ऊपर ही ले लेता हूँ. Okay, now you can try it. अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो तुरंत बताना कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस थिंग. सर वो फर्स्ट आपने नोट जो हाँ, सबसे बोलो. छोटा गेट होगा उसको लेकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना. हाँ, सबसे पहला ए वाई गेट से इम्प्लीमेंट करना है. ओके. तो पहले सबसे पहले नॉट गेट से होगा, फिर दोनों के बीच में और गेट होगा, फिर पहले एंड गेट होगा, फिर और गेट होगा लास्ट में. Once it is done, just let me know so that we can proceed further. आपका एक बार हो जाए तो आप मेरे को बता देना. So I will wait up to 11, 3 minutes more.
Sir. Sir. Yes, tell me. Hello. First step is complete, sir. First complete हो गया. Sir, first step complete. सेकंड करो, अब रिप्लेस करना है, ये रहे फिगर, उसके लिए ये यूज करो. अगर आपको याद नहीं है तो ये यूज करो. तो हर एक गेट को इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना. अगर नॉट गेट है तो ये वाला यूज करना, एंड गेट है तो ये यूज करना, और है तो ये यूज करना. Okay. Done, sir. Done, no? Okay. Sir. Done, sir. So those who have not completed, they can practice, and if they find any difficulty, they can call me. Done, sir. Now,
हाँ ठीक है, अगर नहीं Done, sir. हुआ है तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हो. नाउ वी विल कंटिन्यू वर्क आवर लैब सेशन. तो इसमें भी बस वही सारी चीजें दी हुई है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you need to go for the pre-test. इसमें कुछ आंसर्स गलत है, so you need to write correct, give the right answer. The universal gate is, which one is universal gate? NAND or सर NAND गेट, NAND. NAND gate? NAND गेट. The inputs of the NAND gate are connected together. So both of the inputs are connected together. The resulting circuit is, सर दोनों को अगर शॉर्ट कर दोगे तो कौन सा गेट बनेगा? सर NAND गेट, पहले NANड गेट. AND gate. Not gate, sir, not gate. Inverter होना चाहिए. So NOT gate. Yes. Yes, sir, not gate. The NOR gate is OR gate followed by, NOR गेट कैसे बनेगा? OR गेट के आगे कौन सा गेट लगाओगे तो वो NOR गेट बन जाएगा? Not, sir. और के आगे नॉट लगाएगा तब नॉर बनेगा. हाँ, डिजिटल सर्किट कैन मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ यूनिवर्सल गेट. कौन सा यूनिवर्सल गेट है इसमें? NAND. हाँ, सर तो NAND नॉर्मली गेट. हमने देखा कि NAND gate, sir. हाँ, XOR को बनाना है, आप बार बार उस गेट का यूज करोगे NAND का. तो बनाने के लिए यहाँ पे सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच गेट. एक ही ट्रांजिस्टर इसमें यूज होता है. Not gate. Sir, लास्ट not में gate, देखा sir. था नॉट गेट. यस, Not gate. नॉट गेट. यू हैव टू आंसर दिस. यहाँ पर ये दो गलत दिखा रहे हैं पर वो सही है, तो आपको उसका बॉदर नहीं करना. उसने जो आंसर किया वो गलत है. ना प्रोसीजर, तो प्रोसीजर तो यहाँ पे कुछ है नहीं. सिमुलेशन वी विल गो. नाउ सिमुलेशन में भी इसमें प्रॉब्लम है. तो NAND एज ए यूनिवर्सल गेट. तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तो NAND एज ए OR, आप पहले NAND एज ए AND करेंगे. तो NAND एज ए AND, तो NANड एज ए AND अगर बनाना है तो जस्ट यू क्लिक हियर एंड ड्रैग, तो यहाँ कनेक्शन बन जाएगा. तो दिस इज एन NAND एज ए AND. आप चेक करोगे तो रॉन्ग दिखा रहा है, बट इट्स ए करेक्ट. So now what you want to do, you just take the printout. So आप प्रिंट कर लो या स्नैपशॉट लेकर, just take the snapshot and print in the Word. So here the symbolic representation will be there, where you are going to represent NAND as a AND gate, NAND as a OR gate, NAND as a inverter. So यहाँ पर दो ही है, NAND as a OR, NAND as a XOR. So यहाँ पर अब NAND as a OR है, so click here. Now you can connect. This will be working as an inverter. This will be working as an inverter. Now these two will be available. अगर इसको भी चेक करोगे तो गलत ही दिखा रहा है, but it's a correct. So now what you can do, you can just take the snapshot of this figure and you can paste in the lab manual. So this is the second configuration. XOR और XOR. Sir, हाँ बोलो. वो तो सर्किट डायग्राम राइट था, फिर भी रॉन्ग क्यों बता रहे हैं? वो उन्होंने सब जो बनाया होगा उसको उन्होंने सही से अभी कंप्लीट नहीं किया होगा, इसलिए. ओके सर. ठीक है, तो ये दो हो गए. फिर आपको नॉर करना है, नॉर एज ए और, नॉर एज ए NAND. अब फिर भी एक गेट तो रह जा रहा है, नॉट गेट. तो नॉट गेट कैसे करना है आपको, ऑनलाइन मल्टीसिम. तो अगर आपका लॉगिन है तो यू कैन गो फॉर द लॉगिन. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी लॉगिन यू कैन sign up. So I already have the login, so just I will log in on my portal.
then you can implement. So just I will show you, I have implemented NAND as a universal gate. So I will show that figure. So I will share this files to you. So यहाँ से आप verify भी कर सकते हैं. तो मैंने कहाँ से लिया है पहले कंपोनेंट वो मैं बता देता हूँ. So that if you want to implement, you can implement by your own. तो आपको किसी जरूरत हो. So I think so everyone is aware about this online multi-sim software. So in the first batch, they have told me that you have used online multi-sim in the last semester. So now we are having DG. So DG is available here, digital input. So digital constant is available here. So from here you can take DG. Now we need NAND gate. So from the bottom here on the left hand side, you can take NAND and or NOR, any whatever gate you need. Then this is a bulb. Bulb is available here. So you can go for LED or you can go for bulb. So I have taken a bulb. Now first configuration is a inverter. So for verifying this NAND as a universal gate, you should run this program. Once you run this program, you have to apply the various combination of your input. So first we will try with 1. So if 1 is the input for this inverter, then the output will be 0. If you apply 0, then the output will be 1. So here you can see the light LED is glowing. So if you are not see, just zoom there. So then you can see. सर Yes. सेकेंड वाला थोड़ा सा देखिए तो DG2 का. वो भी करूंगा. फर्स्ट पहले देख लो. फर्स्ट एवरीवन इज एबल टू सी. नाउ सेकंड इज. यस सर. हाँ, सेकंड कौन सा गेट है? एंड गेट. Now in AND gate, when both inputs are true, then output will be true. So if both input are 1, then output will be true. So you can see when both input are 1, then this bulb is glowing. And for any other combination, the output will be 0. So you can just see for 0 1 it is 0, for 0 0 it is 0, for 1 0 it is 0. But if both are 1, then output will be 1. सर Yes, Bajrang. सर यहाँ पे DC2 में आपने दोनों में एंड गेट में दोनों में 1 लिया है तो आउटपुट 1 होगा एंड गेट के लिए. फिर वो इन्वर्टर से पास करेगा तो फिर तो वहाँ पे 0 हो जाएगा. तो फिर बल्ब जल रहा है. कहाँ है? ये नैंड गेट है बेटा. चेक करो. U2 जो है वो नैंड गेट है. नैंड गेट के आगे इन्वर्टर लगा है. तो ये एंड पूरा दोनों मिला के एंड गेट है. नाउ ये तीसरा और गेट कॉन्फ़िगरेशन है. तो कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा. सो यू कैन सी वेदर इफ यू आर चेंजिंग दिस वन, then you are also getting the output 1. If you are changing this one, then also the output is 1. So for 1 1 it is 1, for 1 0 it is 1, for 0 1 it is also 1. When you go for 0 0 combination, then output will be 0, else it will be. तो यहाँ पर सारे आउटपुट सही आएंगे और you can verify. So I will give this links to you. तो आप ये लिंक डायरेक्टली ओपन कर सकते हो मोबाइल फोन में और वो आपको चलेगी भी. So it doesn't need any software or something like flash player for your mobile phone. So if you are having mobile phone, you are able to run this program. So this is NAND. Same way I will provide for NOR gate also. So if you want, just I will show you how you can do. So first you need to click here, new file. So you can save the following changes. Because I have changed the state of input, that's why it is asking that if you want to change the input. If you want to save the changes, then you can save.
So try it at the in the night, because when internet is properly working, or if it is having very high speed, then only this page will load faster. So if your internet is slow, then the page will not load properly. अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर इंटरनेट स्लो है थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी. तो अगर इंटरनेट स्लो है तो आप रात में ट्राई करना. So first we are going to implement inverter using NOR gate. So this is the input, then we will go for NOR gate. So two input NOR gate. So as we already know, if you join these two inputs together, then it will work as an OR gate. So we will join both the inputs and we will apply the input to this configuration. Now once you apply, we need to check the output. So for checking the output, we need some output device. So we will connect a LED or lamp. So we will take a lamp and we will place a ground. Now we will make the connection. So now you can run the program and you can verify whether it is working or not. Now when input is 1, your output will be 0. When input is 0, then the output is 0. So this is the verification of this NOT gate using input. Same way you can implement OR gate. So we will going to implement that OR gate also. So we are having two digital constants. OR gate बनाना है तो minimum दो input होने चाहिए, तो दो input ले लिए. Then we will take NOR gate. Then we will add a inverter in the front of your NOR gate. Inverter made up of NOR gate. So this is the inverter. So this is the configuration for OR gate. So we will verify whether this OR gate is working or not. So again, we will going for simulation. Now in the OR gate, the output will be 1 when any input is 1. So first we will go for 0 0. तो पहले 0 0 पर ऑफ होना चाहिए. तो 0 0 पे लाइट ऑफ हो गई और लैम्प will be in off condition. So I will just make it zoom so you can see it properly. Now you can see the light is off. Now if you are having any input is 1 or any input is high, then LED will glow. So you can see here, if any input is high, this will glow. So either you can 1 0, you can go for 0 1, or you can go for 1 1. So for all these three cases, the output will be 1. Same way you can implement AND gate. So just we will implement those things. So we will go implement that gate also. So for implementing that gate, I will copy this configuration. So we need two inverters on the back side. So we are having two inverters and one NAND gate, NOR gate in the front of those two. So we will replace by short circuit. Here also we are having short circuit between these two inputs. We will take a copy of this.
Now we will try. So this is AND gate. So the output will be 1 when both input is 1. Else the output will be 0. So here the output is 1 because we have applied both input 1. Now if you apply any 0, the output will be off. So you can see here that it will become off. So this is the example of NOR as a university. So if you want to implement any Boolean expression, like if you have tried XOR gate, you can just draw on this online multisim and you can verify whether your configuration is correct or not. तो अगर आपने XOR XNOR का बना लिया है तो आप सीधे यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हो. So I will provide these two links. तो आप ये यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो. तो NAND और NOR. तो आपको मैनुअल में क्या क्या करना है. सो यू नीड टू ड्रॉ ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड or not using NAND and using NOR. So these three configuration you need to draw here, and you have to design two Boolean expressions. So those Boolean expressions are XOR and XNOR gate. तो वो दोनों एक्सप्रेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये जो यहाँ पर दिया होगा. तो एक्सरसाइज में है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट y इक्वल्स टू a बार b प्लस ab बार and y equals to ab plus a bar b bar. So these two expressions you have to implement using XOR and XOR. So this is your lab task. So you can draw on paper and pen and you can paste here. एक तो वो तरीका है, और आपको इसी तरीके से करना है. आप नेट पे सर्च करोगे और जो मैंने कराया है वो दोनों में डिफरेंस है. तो नेट पे आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा. तो ऑन द इंटरनेट यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट दिस आंसर. क्योंकि वो एक्सप्रेशन से किया है. तो एक्सप्रेशन में एक गेट कम चाहिए होता है, तो वो आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे होगा. तो आपको जैसे सिखाया है वैसे ही 3 स्टेप्स में आपको आंसर लिखने हैं. So this is your task in this lab. So any doubts in what you need to do in the lab? सबको यहाँ तक क्लियर है कि लैब में करना क्या है? Okay. So attend your roll calls and you can leave after attending. So enrollment number 8. Aryan. Yes, sir. Yes, sir. Amit. Amit. Ruma. Ruma. Ruma Kumari. बजरंग. यस सर. अमन कुमार. यस सर. राजीव रंजन. Yes, sir. मनंजय कुमार. कशिश कुमार कुमारी सॉरी कशिश कुमारी.
Yes, sir. अखिलेश, Yes, sir. अंकित, Present, चित, sir. चंदन, भूमिका, Yes, sir. भूमिका, Yes, sir. दिव्यांशु, Yes, sir. गगन, गगन, Yes, sir. अभिराज, Yes, sir. Yes, sir. आशीष, Yes, sir. रोशन, Present, sir. रिंकू, Yes, sir. मनीष, Yes, sir. अलसाइफ, ब्रिजेश, प्रेजेंट सर। रोहिणी, रोहिणी, राहुल, Yes, sir. रवि, प्रेजेंट सर। प्रियंका, प्रियंका, प्रेजेंट से अभी लेफ्ट करके रिज्वाइन कर रही है। okay. So bye everyone, have a nice day. So if you are having any doubt you can ask me. तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछना। तो अभी के लिए, आज के लिए तो इतना ही है। तो आप इतने टास्क आपको कंप्लीट करना है। तो यू स्टार्ट डूइंग इट एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो।